Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু সিম্পল বাপ্পাদা চ্যানেল। সিম্পল বাপ্পাদা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আগ্রা রেড ফোর্ট বা আগ্রা দুর্গ। অনেকে দিল্লি ফোর্টের সাথে এই আগ্রা ফোর্ট গুলিয়ে ফেলে। আগ্রা ফোর্ট আলাদা, দিল্লি ফোর্ট আলাদা। এই আগ্রা লালকেল্লা ভারতের শাসক মোগল রাজবংশের একটা রাজকীয় আবাসস্থল ছিল, আর এটা মোগল স্থাপত্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। এই আগ্রার লালকেল্লা ভারতের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে আগ্রার যমুনার তীরে অবস্থিত। আর মোগল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন তাজমহল আগ্রা কেল্লা থেকে মাত্র 2.5 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আগ্রা এই দুর্গ টোটালি লাল রঙের বেলে পাথরের তৈরি, আর এই দুর্গের যে উঠান সেটার আয়তন হচ্ছে 2.5 কিলোমিটার। এই দুর্গটির ভেতরে অনেক প্রাসাদ, মিনার আর মসজিদ আছে। আর এসব 16শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মাণ করা হয়। 100 বছর প্রায় লেগে গেছে এই দুর্গটি তৈরি করতে। এখানে ঢোকার মুখে ডান দিকে আছে টিকিট কাউন্টার। 40 টাকা করে টিকিট এবং 10 টাকা করে ট্যাক্স, টোটাল 50 টাকা করে টিকিট লাগে এখানে ভেতরে ঢুকতে। তো আমরাও টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকেছিলাম। 50 টাকার টিকিট কেটে যথারীতি ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে এক গাইড দাদার সাথে কথা বললাম। কথা বলে দরদাম ঠিক করে তারপর আমরা যথারীতি ভেতরে ঢুকলাম। চলুন বন্ধুরা, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। पहले तो बोलिए ये क्या चीज़ है? ये पहला गेट है सर, ये अमर सिंह गेट है। अच्छा, अमर सिंह शाहजहाँ के सेनापति थे सर, उनका इसी गेट पे मर्डर हुआ। 1644 में क्लेम दिया अमर सिंह गेट। सेकंड गेट नौबत खाना, थर्ड गेट अकबरी गेट। ये गेट है ना, स्टेट नहीं था, जिसे कोई भी घर में डायरेक्ट अंदर ना आए। अच्छा, ठीक है, चेक करा दीजिए आप लोग। इनके पीछे ये किला जो है ना अकबर का है। अकबर से पहले छोटा था, राजपूतों का था। हिंदू महाराजा नेम बादल सिंह चौहान का था। उस समय स्मॉल था, इसको बिग बनाया मुगल, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। सभी ने इसको थोड़ा थोड़ा बनाया। इसको बनाने में 100 साल लगा। 100 साल बाप रे। तो खर्चा 35 लाख रुपया आया। 4000 मजदूर उस काम करते थे। इस किले का जो क्षेत्रफल है वो 90 एकड़ है। इसका 75% एरिया आर्मी के पास है। केवल 25% विजिट करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, चल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। 350। ठीक है বন্ধুরা, এখানে গাইড দাদার সাথে কথা হয়েছিল আর উনি 300 টাকা চেয়েছিলেন। আপনারাই শুনলেন, উনি বললেন ভালো লাগলে 350 টাকা দেবেন। যাই হোক, একা ছিলাম, তো অনেকে থাকলে হয়তো রেটটা একটু তুলনামূলকভাবে কম পড়তো। যাই হোক, আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করিনি, কারণ গাইড ছাড়া এখানে ভেতরে সবকিছু জানা একটু প্রবলেম আছে। তো চলুন বন্ধুরা, দেখে নিই এবং আমরা আমাদের এই টোটাল রেড ফোর্টের জার্নি আমাদের গাইড দাদার মুখ থেকে শুনবো এবং যতটা পারবো আমি আপনাদের শোনাবো। এই যে দরজাটা দিয়ে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে অমর সিং দরজা, অমর সিং দুয়ার। এখানে আমাদের টিকিটগুলো চেকিং হবে এবং টিকিট চেকিং করে তারপর এখানে এন্ট্রি পাস হবে। सेकंड गेट इज नौबत खाना, शहनाई बस्तु। ये वाला है नौबत खाना। नौबत माने शहनाई बस्तु। अच्छा, अकबरी गेट इज दासी, जब राजा ढुकतो दासी फूलो देखो। अच्छा अच्छा, ये साइड आर्चेस देखो, इसको साइड है ना आर्चेस, सोल्जर सिक्योरिटी गार्ड। আচ্ছা আচ্ছা, यहाँ पर সোলজার रहते थे। सोल्जर তো আমরা দেখছি এখানে সোলজার থাকতো এখানে, এবং আকবর এখান থেকে যখন ঢুকতো দাসীরা ফুল ছিটাতো। कारबंगा वाला के 90 एकड़ है। इसका 75% एरिया आदमी को दिया है। अच्छा, घोड़े आते हैं सर, घोड़ों के पैरों में लोहे के नाल होते थे। हाँ, उससे लोगों को ये मैसेज मिलता है कि महाराज आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इको हो रहा है। ये सब होल्स बनाए हैं। हाँ। सब नालियों से गर्म पानी। और ये रैंप है ना, ढाल है। इसके देखो, लाल किला नहीं कहते, इसको आगरा फोर्ट कहते हैं। आगरा फोर्ट, हाँ, लाल किला तो दिल्ली में होता है। ये सब सोल्जर है के लिए। ये बीच में जो प्याला रखा है सर, ये नहाने का टप है। जहांगीर का स्नान कुंड है सर। বন্ধুরা, ভেতরে ঢুকেই আমরা প্রথমে পৌঁছলাম জাহাঙ্গীরি মহল।
अच्छा ये क्या है अभी बोलिए तो? ये तो क्या है? एंट्री आगे आ जाओ। जहांगीरी महल है। जहांगीरी महल। अकबर का महल जो है वो टूटा है। ये नहाने का डब्बा है। जहांगीर का स्नान कुंड है सर ये। अच्छा सिंगल पीस है सर, कोई भी जॉइन नहीं है। जहांगीर का ये नहाते थे यहाँ पर। जहांगीर अकबर का बेटा था। उसके दासियाँ गुलाब के पानी से स्नान करते थे। हाँ। 4.5 फीट गहरा है, 5 फीट आउटर है। अच्छा। इसका वजन है सर 3000 किलो वजन है। इसका वजन 3000 किलो? हाँ, एक बड़े स्टोन को तराश के बनाया गया है। अच्छा। पर्शियन है, पर्शियन उसका आयतें लिखी हुई है। आयतें कुरान की। जहांगीर का नहाने का टब था। शायरी शायरी सी होती है ना। जहांगीर गहरा है, 5 फीट आउटर है। इसका वेट है 3 टन। कार्विंग गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा। महल से बाहर रखा है। अच्छा अच्छा। ये सर ये जगह सर ना नहाने का टब है ना, सिंगल पीस है लोकल। ये सब झरोके हैं, इनमें दासियाँ इनके वेलकम के लिए होते हैं। अच्छा। ये जब राजा आते हैं ड्रम बजाकर उनका अभिनंदन करते थे। ठीक है सर। और ये जगह सर नगारी से इनका वेलकम होता था। ये जगह सर अकबर का महल टूटा हुआ है। इसको भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट थे, हिंदू महाराजा। हाँ। उन्होंने इसको तोड़ दिया 1761 में। तो अकबर का महल खंडर है। हाँ। इसे आपको मैं जहांगीरी महल दिखाऊंगा। नगर हाउस विजय हो ड्रम हाउस है सर। अच्छा। हेलो हेलो। माइक सिस्टम में देखो। हाँ। इनके आने पर अनाउंसमेंट। अच्छा अच्छा। दोनों साइड होता है ये ड्रम बजाते थे। अच्छा। इसको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत माने शहनाई। अच्छा अच्छा। এটা হচ্ছে নবত খানা। शहनाई से उसका स्वागत। জাহাঙ্গীরের নবত খানা। डांसिंग हॉल है, रंग महल है। अच्छा ये डांसिंग हॉल रंगमहल। हमारे नाच गाना होता था। हाँ हाँ। महाराजा सर ऊपर से यहाँ पर महाराजा बैठते थे। साइड में गैस सारा पैटर्न राजस्थानी था। अच्छा। ये जगह से नाच गाना होता है, रंग महल है। जैसे घर होता है, हाँ। घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो नृत्य हुआ करता था। हाँ। महाराजा ऊपर से विंडो में कोई, साइड में गेस्ट। ये सब जहांगीर है ना, उनका स्लीपिंग रूम है। डोर नहीं थे, पर्दा था। कौन सा जहांगीर का स्लीपिंग रूम? ये स्लीपिंग रूम है, पर्दे होते थे। अच्छा अच्छा। राशियां घुंघरू पहनकर बादशाह को जगाते थे। अच्छा अच्छा। साइड में डाइनिंग रूम है। ये मंदिर का ये डाइनिंग रूम है। साइड देख रहे हैं, मंदिर था, देवस्थान, पूजा मंदिर। अच्छा। गौराबाई थी एक हिंदू रानी, सलीम की रानी मानबाई। हाँ। साथ लोग पूजा करते थे। अभी मूर्तियां तो है नहीं, केवल स्थान है। अच्छा। इसको मेहमान नवाजी, मेहमान खाना। अच्छा এটা কি আরেকবার বলুন এই জায়গাটা? এটা ये सब खुला स्पेस है, आंगन टाइप का है। आंगन है और वो सब? ये सब औरतों के लिए बालकनी है। अच्छा अच्छा। ये जो घर में काम करती थी, घर में स्त्रियां काम करते बाहर नहीं जाती थी। अच्छा अच्छा उन लोगों के लिए बैल्कनी। अच्छा अच्छा। ये जगह सर में समर कूल है, एयर कंडीशन अतिथि गृह। আচ্ছা এটা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন রুম। আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি সেই সময় এয়ার কন্ডিশন মেশিন ছিল না, কিন্তু कहने का मतलब सर ये हवा आने का डायरेक्शन है। इसे अच्छा। हवा महल कहते हैं। इसको হাওয়া মহল भी बोलते हैं। होता है, इससे कूलिंग होता है। আচ্ছা। দেওয়ালে এখানে চুনা থাকে যেটার জন্য ঠান্ডা হয় এবং এমনভাবে এটা বানানো যাতে এটা হাওয়া প্রচুর আসে এবং এর জন্য এটাকে এয়ার কন্ডিশনিং ঘর বলা হচ্ছে। ये दीवार देख रहे हैं, ये खोखली है। इनमें चूना होता है। जब हम पानी भरते हैं तो ये दीवार ठंडी रहती है। আচ্ছা আচ্ছা। ये डिजाइन देखा तो हाँ। हीरे का डिजाइन हाँ। सब निकल गया। पेंटिंग আচ্ছা এখানে যে ডিজাইনগুলো আমরা দেখছি এগুলো এর মধ্যে হিরে থাকতো। এই দেখুন এগুলোতে হিরে থাকতো। ইংরেজরা এখান থেকে সব নিয়ে চলে গেছে। এখান থেকে কুচিয়ে কুচিয়ে হিরে নিয়ে চলে গেছে। तो ये डायमंड डिजाइन था, हीरे का डिजाइन। এবং এখানে অনেক পেন্টিং ছিল, পেন্টিং গুলো নষ্ট হয়ে গেছে।
ये दीवार का आपको ये बिल्कुल अंदर से बंद था, यहाँ से खुला है। अच्छा ऐसे लाइन दे दिया। अच्छा, এখান থেকে হাওয়া পাস করে ঘরে। ये जगह था वो व्हाइट स्टोन है, साजा का है। ये साजा का व्हाइट मार्बल था। अच्छा, এটা হচ্ছে হোয়াইট স্টোন, শাহজাহান का है। व्हाइट ये जगह का ना पालकी होता है, पालकी समझते डोली है। ये गन मेटल है, बैक टाइम में सोना था, पड़ता था। इधर में नौकरानियां, सिक्योरिटी गार्ड होता है। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পার্কে, এখানে সিকিউরিটি গার্ড, চাকর বাকররা এখানে থাকতো। এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দূরে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। हाँ, ये जगह में ताजमहल है। हाँ। ये नदी का किनारा है। अच्छा अच्छा, ये साजा की बेटी का रूम है, इसको पालकी बनाया। আচ্ছা, এটা শাহজাহানের মেয়ের রুম ছিল। साजा की छोटी मेरू। এটা হচ্ছে শাহজাহানের ছোট মেয়ের রুম ছিল এবং এটা পালকির মতো বানিয়েছিল। দেখুন এখান থেকে তাজমহল দেখা যায় এবং শাহজাহানের ছোট মেয়ে এখানে বসে বসে তাজমহল দেখতো। Be careful with phone there. You will drop it. You will not come back. बनता था सर्वेंट्स को चलाता था। ये स्टोन जो है ना पतले में सनलाइट आने से ट्रांसफर होता है। अच्छा, दोनों में डायमंड का तो नीचे दिया रखा है। फोटो के लिए खास महल होता है। तो इसको क्या बोले, शाहजहां का खास महल था। राजा मुमताज का मास्टर बेडरूम। আচ্ছা, শাহজাহান মমতাজ কা মাস্টার বেডরুম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শাহজাহান এবং মমতাজের মাস্টার বেডরুম ছিল। এখানে দেওয়ালে প্রচুর হিরে লাগানো ছিল, যেগুলো আলো পড়লে হিরেগুলো চকমক করতো। হিরেগুলো সব ইংরেজরা নিয়ে ডায়মন্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়মন্ড, গোল্ড এগুলোই সব লাগানো ছিল এবং এগুলো সব নিয়ে চলে গেছে ইংরেজরা। শাহজাহান মমতাজের বেডরুম ছিল। इधर है एकदम नीचे এটা একটা গোলাপ জলের পুকুর ছিল এবং গোলাপ জলটা থাকায় ঘরে গোলাপের গন্ধ পেত শাহজাহান আর মুমতাজ। अच्छा, এখানে ইয়া पर सब पर्दे होते थे, এখানে সব কটা পর্দা লাগানো থাকতো। ये साजा की बड़ी लड़की का रूम है, ये जहां का रूम है। अच्छा, এটা হচ্ছে শাহজাহানের বড় মেয়ের রুম। बेटियां थी सर, शादी नहीं हुआ था, इसे डोली बना दिया। अच्छा अच्छा, साजा के 4 बेटे थे, दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब ने सर अपने भाइयों को मार दिया था। अच्छा, पिता को जेल में डाल दिया था, इसको नजर कैद कर। अच्छा, তো এটা হচ্ছে শাহজাহানের বড় মেয়ে। বড় মেয়ের নাম কি? শাহজাহানের বড় মেয়ে জাহানারা। এটা রুম ছিল পালকি স্টাইলে। 2 মেয়ের বিয়ে হয়নি, তো 2 মেয়ের জন্য এরকম পালকি টাইপের ঘর বানিয়ে দিয়েছিল।
এটা জাহাঙ্গীরের সিংহাসন কালো কষ্টিপাতে বেলজিয়াম থেকে আনা হয়েছিল এবং এটা ভেঙে গেছে। ইংরেজরা তোপের গোলা এখানে ফেলেছিল, যার জন্য এটা ভেঙে গেছে। এটা হচ্ছে দেওয়ানি খাস, এখানে রাজা বসতো এবং খাস লোকের এখানে আসতো। और ये क्या था? ये मिनिस्टर सीट। ये राजा का सीट, ये मिनिस्टर स्कूल। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা যেটা কালো রঙের সিংহাসন দেখলাম ওটা ছিল রাজার সিট এবং এটা হচ্ছে মিনিস্টারের সিট। এখানে মিনিস্টার বসতো, মানে মন্ত্রী বসতো। আচ্ছা, জাহাঙ্গীর का লাগান का ऑफिस। अच्छा, এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরের লাগান মানে খাজনা জমা করা অফিস, খাজনা অফিস, टैक्स ऑफिस। सर ये मीना बाजार होता था, जो आपने समझा। हाँ, ये तो नीचे मीना बाजार लगता था। शाहजहां के समय ज्यादा एक तालाब था। हाँ, इसमें सर मछलियाँ पालते थे। अच्छा, इसमें मछलियाँ पालकर फिशिंग करते थे, कॉम्पिटिशन। अच्छा। तो दरवाजे देखा सर, ये लगान का ऑफिस था। दरवाजे सब ये अभी के हैं, उसमें दरवाजे नहीं थे, पर्दे होते। আচ্ছা আচ্ছা, এই দরজাগুলো পরে লাগানো হয়েছে, আগে ওই সময় পর্দা থাকতো। ये सब छुट्टी जाने का रास्ता है, ऊपर दीवान है। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ছাদে যাওয়ার রাস্তা, এখন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ये सर उस समय का बेसमेंट था, सोने चांदी के सर ये बैंक होता है। अच्छा, वो बैंक था नीचे, बैंक पॉइंट बनते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मार्केट में चलन में आता। এই যে এই ঘরগুলো, এগুলো হচ্ছে টাকশাল ছিল এবং এখানে সোনা রূপার মুদ্রা বা কয়েন তৈরি হতো, যেগুলো মার্কেটে প্রচুর চলতো। हाँ, ताजमहल बड़ा लगेगा, पास से छोटा है। तो ये आप लोग नदी नहीं देख रहे, डायरेक्ट ताज को देख रहे हैं सर। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। कैसे? पास से जो खुली चीज देख रहे थे, हाँ, अब आप डायरेक्ट ताज को ही देख रहे हैं। ও আচ্ছা আচ্ছা, इसलिए बड़ा दिख रहा है। বন্ধুরা, একটা জিনিস শুনলাম যে যখন আমি কাছ থেকে তাজমহলটা দেখছিলাম, সামনে নদী দেখাতে তাজমহলটাকে ছোট দেখছিলাম, এখন দূরে থেকে তাজমহল দেখছি, তাই তাজমহলটাকে বড় দেখছি। তো এই ইলিউশনের কথা আমাদের গাইড দাদা জানালেন, খুব ভালো লাগলো শুনে। যাই হোক, সামনে এগিয়ে একটা মসজিদ দেখতে পেলাম। এই মসজিদটা বন্ধই পড়ে আছে, আগে এখানে নামাজ পড়া হতো, এখন এটা এরকমই রয়েছে। এই মসজিদটার নাম হচ্ছে নাগিনা মসজিদ, আর এই মসজিদটা শাহজাহানের আমলে তৈরি হয়েছিল। আর এই মসজিদটা মেইনলি তৈরি করা হয়েছিল রাজপরিবারের মহিলাদের জন্যে। এটা একটা পার্সোনাল মসজিদ ছিল, আর এটার বেশ 3টে সুন্দর গম্বুজ ছিল, আর এত সুন্দর আর্টিস্টিক এর কারুকার্য ছিল যেটা দেখলে অবাক হতে হয়। আর এই মসজিদটার নিচের দিকে বসতো মিনা বাজার। এই মিনা বাজার একটা বিশাল লাক্সারিয়াস একটা বাজার ছিল, যেটা নিচে রাস্তার দিকে বসতো। আর ওপর থেকে, ওপরে এই নাগিনা মসজিদের বারান্দা থেকে
এই রাজ পরিবারের মহিলারা এই মিনা বাজার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পছন্দ করা জিনিসপত্র কিনতো। তো বন্ধুরা, আমরা এই মসজিদ দেখে এই আগ্রা রেড ফোর্টের লাস্ট যে পয়েন্ট সেখানে আমরা চলে এলাম এবং এখানে আমরা যেটা দেখলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। চলুন একটু দেখে নিই। इसका सेट था। আচ্ছা, इसके बीच में फरियादी घंटी कभी भी कंप्लेन दे सकते हैं। साइड में आनी है, ये वीआईपी लीगल कॉमेंटेड है। ये ब्रिटिश गवर्नर ग्रेव है, अंग्रेजों का शासन था। हाँ, इसी समय नेचुरल डेथ हुआ, टॉम बना दिया। नाम था जॉन रसल कॉल्विन। 1857 में मंगल पांडे विद्रोह हुआ था, उसके समय नेचुरल डेथ होने में यही समाधि बना दिया। वाइट है सर, ये मोती मस्जिद शाहजहां ने पब्लिक के लिए बनाया था। अब यहाँ नमाज तो होता नहीं, इसलिए मस्जिद को बंद रखा है। अच्छा साइड में रानिया था, बीच में सिंहासन था, पिकअप थ्रोन था। अच्छा इसके बीच में एक फरियादी घंटी थी, कभी भी कंप्लेन देकर कंप्लेन आप राजा तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। अच्छा दीवारों के ऊपर आर्मी है, कैंप है, पहले मुगल आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, फिर इंडियन अच्छा वाइट है सर, ये मोती मस्जिद है, ये शाहजहां ने आम लोगों के लिए बनाया था। हाँ। अब यहाँ नमाज तो होता नहीं, इसे मस्जिद को बंद कर दिया। अच्छा और ये जगह से बीच में ग्रेव लगाई, ये अंग्रेज की समाधि है, हाँ। क्योंकि सब मुगलों के बाद अंग्रेजों का रूल था। আচ্ছা, ये है देवानी आम, তাই তো? ये देवानी आम। এখানে নরমাল জনতারা তো লোক তাদের লোকাল মিটিং করতো এবং রাজার কাছে কোনো কমপ্লেন নিয়ে আসতো। और ये देख रहे हैं सर, ये यहाँ से ब्लैक लोग एंट्री करते हैं, यहाँ से हम लोग। ये दरबार है, ये अंग्रेज, ये क्या है? ये ब्रिटिश गवर्नर ग्रेव है, नेम जॉन रसल कॉल्विन। उसका समाधि है, हाँ, कब्र। ग्रेव है सर, समाधि है। नाम था जॉन रसल कॉल्विन। अच्छा 1857 में मंगल पांडे विद्रोह हुआ था, हाँ, उसी समय नेशनल डेथ होने पे यही समय था। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে সমাধি জন রাসেল कॉल्विन কলভিন গ্রেভ, এনার সমাধিস্থল। এটা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ওনার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরে विद्रोह हुआ था 1857 1857 ওই সময় ওনার ডেড বডি বাইরে না নিয়ে ন্যাচারাল ডেথ হয়েছিল, এখানেই সমাধি করে দেওয়া হয়েছে। এই हम लोग का लास्ट पॉइंट था ना, এটাই ছিল আমাদের আগ্রা ফোর্টের লাস্ট পয়েন্ট। যাই হোক, আমরা আমাদের লাস্ট পয়েন্ট যেটা সমাধিস্থল দেখে আমরা আবার যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম সেই রাস্তা দিয়ে আমরা ফিরে চলে এলাম আমাদের যেখানে গাড়ি দাঁড় করানো ছিল সেখানে। তো আগ্রা রেড ফোর্টটা পুরোটাই আমি আপনাদের দেখালাম। শুধু দেখালাম না, আমাদের গাইড দাদা যা যা বললেন পুরোটাই তার মুখ থেকে আপনাদের শোনালাম না কেটে। তো বন্ধুরা, আপনারাও ভিডিওটা দেখুন না কেটে, অনেক কিছু জানতে পারবেন এই আগ্রা ফোর্ট সম্বন্ধে। বন্ধুরা, বিভিন্ন জায়গা দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো আমার একটা শখ বলতে পারেন। আর এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে আমি যে আনন্দ পাই, যা দেখি, সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দেবেন। আর এরকম আরো ভিডিও যদি পেতে চান তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। আজকে এই অবধি, টাটা। সবাইকে আমার প্রাণ ভরা, জল ভরা, ঢালাও ঢালাও, ঢালাই করা ভালোবাসা।